انتہائی قابل قدر معزز سامعین، چونکہ آج رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہیں اور کل رمضان المبارک کی 10 تاریخ گزری ہیں، اور 10 رمضان میری اور آپ کی کل کائنات کی سب سے بڑی ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ تو میں 2-4 باتیں اپنے اس ماں کے عقیدت کے بارے میں پیش کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد کا نام خویلد ہے اور ان کے دادے کا نام اسد ہے اور پردادے کا نام عبد العزیٰ ہے۔ ان کی کنیت ام القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم اور حضرت خدیجہ کی کنیت ام قاسم ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت واقعہ عام الفیل، جب ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبے کو ڈھانے کے لیے، اس واقعے سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں کی ولادت یا لوگوں کی وفات وہ کسی بڑے حادثے سے شمار کیا جاتا تھا کہ فلاں واقعے کے اتنے سال بعد یا فلاں واقعے سے اتنے سال پہلے۔ تو واقعہ فیل سے 15 سال پہلے ان کی ولادت ہے۔ یہ عرب کی یتیم، محتاج، غریب پرور خاتون شمار کی جاتی تھی، بلکہ عرب ان کو ام الیتامہ یعنی یتیموں کی ماں اس لقب سے یاد کیا کرتے تھے، اور یہ اپنے تجارت کیا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے مال کی دولت سے نوازا تھا اور مال کی دولت عطا فرمائی تھی۔ شام کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عقد ہوا کہ آپ نے اپنا تجارتی مال اللہ کے پیارے پیغمبر کو وکیل بنا کر بھیجا۔ واپس پر آپ کے خادم اور آپ کے غلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات ذکر کیے جو کمالات کسی عام انسان کے نہیں تھے، تو یہ سمجھ گئی کہ یہ یقیناً اللہ کے نبی ہوں گے، بڑے شان والی ہستی ہوں گے۔ تو انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام قبول فرمایا۔ یہ بیوہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے جوان تھے۔ ذرا سوچئے، 25 سال کا جوان، کیا اس کی تمنا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی بیوہ خاتون سے نکاح کروں؟ پھر 25 سال کا جوان، کیا اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے سے دگنے عمر کے خاتون کے ساتھ نکاح کروں، اپنے سے بڑی عمر کے خاتون کے ساتھ نکاح کروں، یا عمر میں وہ اپنے سے کمتر خاتون کا انتخاب کرتی ہیں؟ یہ عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کچھ 15 سال کے قریب بڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ 15 سال اللہ کے پیارے پیغمبر نے نبوت سے پہلے ان کے ساتھ گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جتنے بچے پیدا ہوئے سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ تمام کے تمام سیدہ خدیجہ کے بطن مبارک سے ہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب ہے، رقیہ ہیں، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں میرے پیغمبر کی۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ 4۔ کہیں کوا تمہیں دھوکہ نہ دے دیں، کہیں کوا تمہیں دھوکہ نہ دے دیں۔ میرے اور آپ کے لیے
जितना एहतराम सैयदा फातिमा का है उतना ही एहतराम सैयदा ज़ैनब का भी है, उतना एहतराम सैयदा रुक़ैया का भी है, उतना ही एहतराम सैयदा उम्मे कलसूम का भी है। और उसकी वजह मैं सैयदा फातिमा का एहतराम क्यों करता हूँ? इसलिए कि वो मेरे नबी के लख्त जिगर हैं। तो फिर मैं हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कलसूम का एहतराम क्यों ना करूँ? इसलिए कि वो भी मेरी पैगम्बर की लख्त जिगर है। मैं सैयदा फातिमा का इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि वो मेरी माँ हज़रत खदीजा का दिल का टुकड़ा हैं। तो फिर मैं ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कलसूम उनका एहतराम क्यों ना करूँ? वो भी तो मेरी माँ हज़रत खदीजा के दिल के टुकड़े हैं। मैं सैयदा फातिमा का एहतराम इसलिए करता हूँ कि वो जन्नती खातून हैं। तो मेरे पैगम्बर ने तो हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कलसूम के लिए भी बिशारत दी कि वो भी जन्नती खातून हैं। तो मेरे और आपके लिए चारों बराबर हैं, इसलिए कि चारों मेरे नबी की बेटियां हैं। और ये चार बेटियां कुरान पाक की आयत से साबित हैं। या अय्युहन नबी कुल ले अज़वाजिक व बनातिक, ए मेरे नबी आप अपनी अज़वाज से कह दें और आप अपनी बेटियों से कह दें। ये नहीं फरमाया आप अपनी बेटी से कह दें, बल्कि फरमाया अपनी बेटियों से कह दें। तो बेटियां एक से ज्यादा थी तब तो फरमाया कि कुल बनातिक, अपनी बेटियों से कहें। तो हज़रत खदीजा के बत्न मुबारक से ये चार बेटियां हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटे हैं, एक का नाम कासिम है, एक का नाम अब्दुल्ला है, और फिर इनके लक़ब तय्यब और ताहिर भी है। ये औलाद अल्लाह पाक ने अता फरमाई हज़रत खदीजा के बत्न मुबारक से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, आप इनका सहारा बनी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर पर हर दम आप सहारा बनी, आप मदद करती रही। और सबसे पहला इस्लाम ख़वातीन में वो हज़रत खदीजा ने कबूल किया है। और ये मेरे पैगंबर का भी कमाल और ये मेरी माँ का भी कमाल। मेरे पैगंबर का कमाल कि इंसान के किरदार को पहचाना जाता है तो पहचानने वाले करीबी लोग होते हैं। इंसान के किरदार उसके करीबी लोगों से पहचानी जाती है। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर का सबसे करीबी हज़रत खदीजा है। बीवी को पता होता है शोहर कितने पानी में है, कितना पानी से बाहर है, ये बीवी को पता होता है। तो हज़रत खदीजा अगर मेरे पैगंबर के किरदार से मुतमईन ना होती तो सबसे पहले ईमान कबूल न करती, लेकिन किरदार से मुतमईन थी इसलिए सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और मेरे पैगंबर का कमाल कि वो इतना कमाल वाला कि सबसे पहले उसने अपनी बीवी को अपने किरदार से मुतमईन किया। फिर दूसरे नंबर पर इंसान के बचपन के दोस्त होते हैं, सब किरदार उनके सामने होता है। तो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हज़रत अबू बकर ने, और वो भी मेरे पैगंबर के बचपन का यार। ये भी दोनों का कमाल। हज़रत अबू बकर ने पहचाना कि 38 साल मैंने जिसके साथ गुजारे उन 38 सालों में कोई एक ऐब नहीं पाया, तो मैं क्यों ना उस पर ईमान न लाऊं। और मेरे पैगंबर ने 38 साल उसके साथ ऐसे गुजारे कि कोई एक ऐब भी जाहिर नहीं होने दिया। ये कमाल है मेरे पैगंबर का। तीसरे नंबर पर खादिम आते हैं, नौकर। तो आपके नौकरों ने सबसे पहले आप पर इस्लाम लाया और इस्लाम कबूल किया। ये बुनियादी लोग होते हैं, इनको किरदार का पता होता है। उन्हीं में से एक हज़रत खदीजा थी, सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह पाक ने एजाज़ ये बख्शा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में हैं। एक कटोरा है लकड़ी का बना हुआ, उस लकड़ी के कटोरे में सैयदा खदीजा कोई खाना लेकर आ रही है।
जिब्रील तशरीफ लाए, अर्ज करने लगे आका अब ये एक खातून हुजरे से अंदर आएगी, उसकी बारीक सी पंडलियां हैं और उसकी ये जो जिबड़े हैं ये अंदर को तोड़े से दन से हुए हैं, बुढ़ापे की वजह से, कमजोरी की वजह से। अल्लाह पाक फरमाते हैं उस खातून पर मेरा सलाम का अर्ज कर दें, उस खातून को मेरा सलाम दे दें और उस खातून को खुशखबरी दे दें कि रब तुझे जन्नत में ऐसा महल देगा जिसमें न शोर होगा, न शराबा होगा, ना कोई तकन होगी और वो एक मोती का बना हुआ होगा। रब का सलाम भी, रब की तरफ से जन्नत की महल की खुशखबरी भी, और महल भी मोती का बना हुआ और पुरसुकून भी। फरमाते हैं इतने में दरवाजा खुला, मैंने देखा अंदर आने वाली खातून कोई और नहीं, मेरी और आपकी कुल कायनात की सबसे बड़ी माँ हजरत खदीजा थी रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सलाम पेश किया। जिब्रील अर्ज करने लगे आका मेरा सलाम भी अर्ज कर दे, मेरा सलाम भी अर्ज कर दे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खदीजा ये जिब्रील मेरे पास आया है, ये अपने तरफ से भी तुझे सलाम दे रहा है, ये रब की तरफ से भी तुझे सलाम दे रहा है। अर्ज करने लगी आका मेरे रब ने मुझे सलाम भेजा है। फरमाया हाँ खदीजा हाँ, तेरे रब ने तुझे सलाम भेजा है। और सिर्फ सलाम नहीं, रब ने तुझे जन्नती होने की खुशखबरी देकर जन्नत में तुझे महल भी दे दिया है, और महल का जाविया और वो महल जैसा होगा वो भी बतला दिया। तो जन्नत के उस महल के मकीन वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, कल उनका यौम वफात था। मैंने कहा थोड़ी दो चार बातें इस अकीदत से अर्ज कर दूं कि मैं उसका बेटा हूं, शायद कल हशर के मैदान में ये निस्बत काम आए और मेरी माँ मेरे सर पर हाथ रखें, आपके सरों पर हाथ रखें कि ये हमारे बेटे थे, रब्बा मेरे इन बेटों के हक में मेरी सिफारिश कबूल करके इनको जन्नती बना दे।